دوسری جانب آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب اور آزاد کشمیر نے وفاقی حکومت کے خلاف فنڈز کی عدم فراہمی پر شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ وزرائے اعلیٰ محمود خان اور خالد خورشید نے فنڈز نہ دینے پر وفاق کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ پنجاب بولے شہباز حکومت صوبوں سے تعاون نہیں کر رہی۔ وزیر خزانہ آزاد کشمیر نے کہا نہ جانے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ریجیم چینج ہوا ہے، تو تب سے ہم بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں، بلکہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے، صحت کارڈ کے فاٹا کے پیسے ہمیں نہیں مل رہے۔ میں آج صرف اس کو وارن کرنا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے واجبات، ہمارے پیسے دے دے، وہ ہمارا حق ہے، ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے۔ ٹھیک ہے، سخت حالات ہے تو ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اگر ہمارے پیسے ہمیں نہیں ملے تو ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پہ آپ نے جی بی کا یہ سمجھنا ہے کہ نہ ہم این ایف سی میں، نہ ہمارا کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ، ہمیں گرانٹ ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور اسی گرانٹ پہ یہ صوبہ چلتا ہے۔ اس سال جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ تمام اینٹیٹیز کے بجٹ جو ہیں وہ 20-25%، 17% بڑھا ہے۔ واحد جی بی گلگت بلتستان جن کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دی۔ پنجاب کو بھی ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ اعلانات ہوتے رہے کہ وہ کریں گے، اور پنجاب میں جو بھی ریلیف آپریشن ہوا ہے وہ ہمارے پنجاب کے اپنے وسائل کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو چیئرمین عمران خان صاحب کی جو ٹیلی تھون کے ساتھ جو فنڈز جنریٹ ہوئے تھے، جو لوگوں نے ڈونیشن دی تھی، اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 14 ارب روپے جو ہیں وہ تو بیسک ان کو ریلیف دی گئی ہے نا جی۔ اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے اس کی ہونی ہے ریہیبلیٹیشن، اور ابھی پچھلے ہفتے ہی ایکنے کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ اپروو کیے ہیں ڈفرینٹ لونز اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں، ان میں پنجاب کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں رکھا گیا، پنجاب کا نام ہی نہیں ہے اس پوری ڈاکیومنٹ کے اندر۔ یہ رجیم چینج کے بعد گورنمنٹ پاکستان کے اندر نئی آئی اور معیشت کے چیمپئنز آ کے بیٹھے، جنہوں نے ڈالر بھی راتوں رات بہت نیچے کر دینا تھا، انہوں نے آ کے سب سے پہلا ہٹ کیا آزاد کشمیر کو، اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ میسج لائن آف کنٹرول کے اس پار کس کو جا رہا ہے اور ہم کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے ایلیمنٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا بجٹ جو انہوں نے ڈٹرمن کیا 74.320 ارب، اس میں سے انہوں نے ہمیں 60 ارب روپے دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ملک تباہی کی دلدل میں دھنس گیا، صورتحال سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں۔ مہنگائی پر کوئی بات نہیں کرتا، میری گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں، میری گھڑی ہے، میری مرضی سے فروخت کروں یا کچھ اور کروں۔ تیاری کے بعد اسمبلیاں دسمبر میں ہی تحلیل کریں گے۔ وہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ دلدل میں جو ہم گھستے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا۔ کوئی عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے۔ میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے، دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی۔ کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا، جب بھی الیکشنز ہو ہم نے جیتنا ہے۔ سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے، میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے۔ ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے، تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے۔ نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا، الیکشن نہیں کروائے گا۔ ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں۔ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف، اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن۔ ان کو NRO2 دیا گیا، NRO2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا۔ پہلے مریم بچ گئی، اسحاق ڈار آیا، وہ ڈرائی کلین ہو گیا، اور پھر اب سلمان شہباز جو کہ مفرور تھا وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا۔ یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں، صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرے۔ ہمارا پلان پورا وہی ہے۔ جب میری تیاری ہوگی، میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی، میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا، میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا۔ کیئر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے، اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر آئی جی اپنا رکھ کے، تو انہوں نے ہمارے پہ پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے۔ ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسمبلی توڑنا، ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہوں اس کے اوپر۔
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से गुज़श्ता रोज़ की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाया था। इसी पर मज़ीद बात करेंगे वकार सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, जो हमारे ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन के वो बता रहे हैं कि इमरान खान की जो गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस ले लिया और इस ज़मन में जो पैमरा है उससे भी गुज़श्ता रोज का जो स्क्रिप्ट है वो मांगा गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है पैमरा को आज ही इमरान खान की जो तकरीर का स्क्रिप्ट है फराहम करने की हिदायत दी गई है। जबकि हुकाम जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जो है वो कर सकता है। जबकि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाया था। जबकि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पहले ही इमरान खान के खिलाफ जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले की जो है वो समाअत कर रहा है और इस ज़मन में कल इस केस की समाअत भी होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमिश्नर ने पैमरा से गुज़श्ता रोज़ की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी मांग लिया है। इलेक्शन आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी कायद और मुस्लिम लीग नून का बयानिया अवाम तक पहुँचाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, कहिएगा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या जो है वो बातें आज अवाम के सामने रखी जाएंगी? जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो आइंदा आम इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि जो बयानिया है उसको तैयार किया गया है और उसमें ख़ास तौर पे जो अदालती मुकदमा से बरियत के फ़ैसले हैं और फिर जो डेली मेल और इसी तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उस पर जो फ़ैसले आए हैं उनको अवाम तक पहुँचाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। और इस सिलसिले में मरहलावार चलने के हवाले से एक हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून की सामने आई है, जिसमें ज़िलाई सतह पर पहले वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, जिसके बाद फिर डिविजनल सतह पर जो है वो पंजाब से इसका आगाज़ किया जाएगा, जिसमें बड़े जलसे भी किए जाएंगे। और फिर इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन से वापसी से कब जो है वो एक ग्राउंड बनाया जाएगा और एक अवामी राब्ता मुहिम इलेक्शन के लिए तैयार की जाएगी। और इसी सिलसिले में आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो इन्हीं अदालती और जो लंदन में और बरतानिया में जो केसेस थे उससे मुतालिक जो फैसले आए हैं उस पर वो बात करेंगे और मुल्क की जो माशी सूरत हाल है और जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी वो बातचीत करेंगे। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक हिकमत अमली मुरतब कर ली है और ये बताया जा रहा है कि दिसंबर के आखिर में पार्टी के मुरतब कर ली गई है। जावेद हुसैन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी नाज़रीन, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस समेत कल होने वाले 5 केसेस डीलिस्ट कर दिए हैं। बेंच के अदम दस्तावेज पर इलेक्शन कमीशन ने केसेस को डीलिस्ट किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डीलिस्ट किए गए केसेस की समाअत अब 20 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस भी डीलिस्ट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने की दरख्वास्त पर भी समाअत करना थी। तहम इलेक्शन कमीशन इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केसेस की समाअत कल ही करेगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। हल्का PP 158 और शिमाली लाहौर से रैलियां निकाली गई हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शाहजेब शहजाद रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। हल्का PP 158 से भी MPA मियां अकरम उस्मान की ज़ेर क़ियादत रैली निकाली गई। रैली जेल रोड ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ मकामात से होती हुई सदर गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे और नारेबाजी की। मियां अकरम उस्मान ने मुतालबा किया कि इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाया जाए। हम हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमरान खान एक तरफ, सारी जमातें एक तरफ, तुम्हें पता लग जाएगा कि अवाम किसके साथ है। मेरा मुतालबा है, अभी यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ है, हम फिर तैयार हैं
दोबारा टेस्ट के तौर पर फिर यहाँ पर इलेक्शन कराओ। शुमाली लाहौर से पीटीआई सरबरा इंसाफ फोर्स मियां अब्बाद फारूक की ज़ेरे क़यादत रैली निकाली गई। रैली में पीटीआई कारकुनान मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, बग्गियों पर सवार होकर शरीक हुए। रैली जीटी रोड बागबानपुरा से दरोगावाला के बाद रामगढ़ चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मियां अब्बाद फारूक का कहना था कि आवाम करप्ट हुकूमत से जल्द छुटकारा चाहते हैं। रैलियों में कारकुनान ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करवाई। सरकारी और निजी इदारे गैस के 448 अरब रुपए से जायद के मकरूज। गैस हुकाम ने पेट्रोलियम कायमा कमेटी में तफसीलात पेश कर दी हैं। मकरूज इदारों में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, CNG और पावर सेक्टर शामिल है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं ज़िशान यूसुफजई से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात पेश की गई हैं? देखिए, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में 448 अरब और 86 करोड़ के वाजिबात है और सबसे ज्यादा जो वाजिबात है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के जिम्मे है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने फीड के मद में 171 अरब रुपए और फ्यूल की मद में 20 अरब रुपए की अदायगी करनी है। और मैं आपको बताता चलूं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को पूरे मुल्क के गैस का तकरीबन 17% तक जो है फराहम किया जाता है, जो तकरीबन $2 में खरीदता है। ये चेयरमैन कमेटी ने बताया और चेयरमैन कमेटी ने रिमार्क दिए कि काद तो लगता है कि पेट्रोलियम डिवीजन पसंदीदा शोबा है जिससे कोई पूछ नहीं करता। कि इलेक्ट्रिक के जिम्मे भी 39 अरब रुपए है जो उन्होंने अदा करने हैं सेस की मद में और उनसे भी वसूली नहीं की जा रही है। इस पर जब सवाल उठाया गया तो रिमार्क्स आ गए हुक्काम की जानिब से कि इलेक्ट्रिक के साथ मुख्तलिफ मुकदमात है जिसकी बायस रिकवरी में मुश्किलात है। मैं आपको CNG सेक्टर का बताता चलूँ तो CNG सेक्टर ने 82 अरब और 25 करोड़ रुपए अदा करने हैं, जबकि कैप्टिव पावर सेक्टर ने भी 54 अरब रुपए अदा करने हैं। IPPs ने 4 अरब 57 करोड़ रुपए अदा करने हैं और ये तमाम जो वाजिबात है ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में है जो बहुत भारी है। और इसके लिए जब पूछा गया कि हुकूमत क्या कर रही है इन वाजिबात को खत्म करने के लिए, तो हुक्काम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने वजीर खजाना की सदारत एक कमेटी कायम की है जो एक नया कानून तैयार करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस में बरी मुलजिमान की नजरबंदी खत्म कर दी है। अदालत ने महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। महकमा दाखिला ने 1 दिसंबर को 5 मुलजिमान को 3 माह के लिए नजरबंद करने का हुक्म दिया है। लियाकत राना से बात करेंगे। जी लियाकत। देखें, परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जमान को हुकूमत सिंध ने MPO के तहत 3 माह के लिए नजरबंद किया था आज, और उसकी नजरबंदी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो IG सिंध और होम सेक्रेटरी सिंध जो है वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने वजाहत मांगी कि जब अदालत ने मुल्जमान को बरी कर दिया है, उनके खिलाफ शवाहिद नहीं थे, तो उसको नजरबंद किसकी इजाजत से किया गया और किस कानून के तहत किया गया। अदालत को बताया गया कि हुकूमत सिंध ने काबीना की मशावरत के बाद मुल्जिमों को नक्शे अमन की वजह से, क्योंकि परवीन रहमान की बहन ने यह दरख्वास्त दी थी कि उन्हें थ्रेट है, उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, इसके बिना पर इन मुल्जिमान को MPO के तहत नजरबंद किया गया, जिस पर जस्टिस KK आगा ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब आपके पास शवाहिद नहीं है, आप मुल्जिमान को कैसे कैद रख सकते हैं, आपके पास शवाहिद नहीं होते और आप गलत बयानी करते हैं। ठीक है, आप गलत बयानी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की समरी मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है। नैब की मुलाजमत को सिविल सर्वेंट्स डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। वजारत कानून का ये खत है। तजवीज़ मंजूर करने से नैब खुद मुख्तार इदारा नहीं रहेगा। वजारत कानून के मुताबिक हुकूमत ने नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की समरी मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी गई है। नैब की मुलाजमत को सिविल सर्वेंट्स डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। वजारत कानून का खत, तजवीज़ मंजूर करने से नैब खुद मुख्तार इदारा नहीं रहेगा। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है आमिर सईद वासी। आमिर बताइएगा। कि नैब की तरफ से ये समरी भिजवाई गई थी हुकूमत को और वजारत कानून को, जिसमें कहा गया था कि नैब को खुद मुख्तार इदारा जो है वो खत्म करके गवर्नमेंट का इदारा बना दिया जाए, लेकिन जो खुद मुख्तारी खत्म करने की जो तजवीज़ थी चेयरमैन नैब की, उसको वफाकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। उसमें ये कहा है कि नैब ने मुलाजमत को सिविल सर्वेंट्स ऑक्यूपेशनल ग्रुप डिक्लेयर करने की जो समरी थी वो नहीं मंजूर की जा सकती, क्योंकि नैब की जो मुलाजमत है उसको सिविल सर्वेंट्स
सोर्स डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इसमें वजारत कानून ने 3 एतराज़ात आयद किए हैं। ये कहा है कि तजवीज़ मंजूर करने से नैब खुद मुख्तार इदारा नहीं रहेगा, और दूसरा ये कि नैब के जितने भी मुलाजमीन हैं वो ऑलरेडी पहले ही बहुत अच्छे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, बहुत से अच्छी उनकी मराहत हैं, और उनको बराबर नहीं किया जा सकता सिविल सर्वेंट्स के। लिहाजा जो ये तजवीज़ है ये मंजूर करने से चेयरमैन नैब की जो खुद मुख्तारी है वो भी खत्म हो जाएगी और वो बराह रास्त हुकूमत के मातहत हो जाएंगे। लिहाजा वजारत कानून ने ये समरी मुस्तरद कर दी है और नैब को कहा है कि नैब खुद मुख्तार इदारा ही रहेगा और चेयरमैन नैब की जो खुद मुख्तारी है और उनके जो ओहदे की है वो बरकरार रहेगी। कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका।